गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेसन में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स डिस्कस करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिसमें इंटीग्रेशन प्रोसेस में लिमिट नहीं दी होती। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में दोनों लिमिट होती है, अपर एंड लोअर लिमिट। तो ये ऐसे फंक्शन से इसमें लिमिट नहीं दी है। तो इसमें हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अराउंड 21-22 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट इज कॉमन क्वेश्चन है स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट cot x dx। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन रिड्यूस tan x एंड cot x इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। सो tan x कैन बी रिटन एज sin x बाय cos x एंड रूट cot x कैन बी रिटन एज रूट cos बाय रूट sin x। आफ्टर वी कैन टेक LCM, रूट साइन इंटू रूट साइन sin x, रूट cos x इंटू रूट cos x डिनोमिनेटर अंडर रूट sin x cos x। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टू। सो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 sin x का cos x हो जाएगा। नाउ नीचे जो 2 sin x cos x है इसको sin x प्लस cos x की टर्म में मतलब ऐसा हमें ऐसी टर्म में इसको डिवाइड करना है। तो 2 sin x cos x को हमें इस तरह से रिड्यूस करना है कि जो न्यूमरेटर है वो एज अ डेरिवेटिव हो। डिनोमिनेटर में हम ऐसी वैल्यू लाएं जिसका डेरिवेटिव sin x प्लस cos x हो। तो sin x प्लस cos x डेरिवेटिव होता है sin x माइनस cos x का। इट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस 2 sin x cos x इन टर्म ऑफ sin माइनस cos। फॉर दिस you have to take sin x minus cos x whole square and it is equal to a square plus b square minus 2ab. So sin square plus cos square is 1. So from here we can find the value of 2 sin x cos x by shifting. It will be 1 minus sin x minus cos x whole square. Now put this value in the square root. We'll be getting under root 1 minus sin x minus cos x whole square. Now if we put sin x minus cos x as t, the derivative of sin x minus cos x will be sin x plus cos x dx equal to dt. So it becomes root 2 integration 1 upon under root 1 minus t square, whose integration is root 2 sin inverse t plus c, and put the value of t. Next question same पहले जैसा ही है, sin x plus cos x upon under root sin 2x. In this question first you can write sin 2x as 2 sin x cos x. इसके बाद ये पहले जैसा ही बन जाएगा. And next question is sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x. It is also the same question. Sin 2x can be written as 1 minus sin x minus cos x whole square, as previously we have discussed. So after putting the value we get this, and sin x minus cos x can be taken as t. So it becomes tt by 5 square minus 16t square, and further 5 square minus 4t whole square, and integration of 1 by a square minus x square 1 by 2a log a plus x upon a minus x plus c. So also here the coefficient of t is 4. So in the divide denominator there will be 4 also. Integration में कोई भी coefficient होता है तो उससे divide होता है, and lastly we can put the value of t. Next question, x square plus 1, x square plus 2, x square plus 3. In this question we have to take x square as some variable y or z, but first you have to remove the integration sign and then only you can put the value of x square, as all three terms are in the form of x square. So we can assume x square as y. So it becomes y plus 1 upon y plus 2, y plus 3. Now by using partial fraction we can write it as a upon y plus 2 plus b upon y plus 3. Now a y plus 3, b y plus 2, after taking LCM and denominator cancelling we get this relation, and in this we have to put y is equal to minus 2 firstly for making this as 0. So minus 2 plus 1 will be minus 1, and here 3 minus 2 is 1a, and this becomes 0. So a is minus 1. Similarly if we put y equal to minus 3, minus 2 equal to minus b, so b is equal to 2. Putting the value of a and b in the previous relation we get y plus 1 upon y plus 2, y plus 3 is equal to minus 1 by y plus 2 plus 2 by y plus 3, and again putting x square in place of y we get x square plus 1 by x square plus 2, x square plus 3 is equal to minus 1 by x square plus 2 plus 2 by x square plus 3. Putting the integration sign both side and using the formula 1 by x square plus a square, which is equal to 1 by a tan inverse x by a, then we get this relation. Another question, 3x plus 5 upon under root x square plus 2x plus 4. So in the denominator there is quadratic and in the numerator there is linear polynomial. So in this case you have to reduce the numerator in two terms. So 3x plus 5 can be written as a constant bracket 2x plus 2. अब ये 2x plus 2 कहाँ से आया? जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है, अगर हम उसको t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x plus 2. So
ए के साथ हमें इसका डेरिवेटिव लेना है हमेशा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको न्यूमरेटर को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक ए कांस्टेंट के थ्रू और ए के साथ आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जिस भी चीज़ को आप टी अज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव। तो इन दिस केस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विल बी टी, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 2x प्लस 2 एंड प्लस में आएगा बी कांस्टेंट हमेशा। तो आप डायरेक्टली विदाउट, अभी पहले हम ए और बी की वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं, बाद में कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एज इट इज को पुट कर सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ 3x प्लस 5 वी कैन राइट ए ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस बी, हम सेपरेट भी कर देंगे इसको। अब फर्स्ट जो पार्ट है वो नीचे वाला टी है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इट बिकम्स 1/√t dt। और सेकंड 1/√, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को आपको रिड्यूस करना है वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्म में। सो इट्स मेथड इज ब्रैकेट लगाना है, होल स्क्वायर लगाना है, फर्स्ट टर्म x आएगी हमेशा, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमेशा x लेना है, प्लस सेकंड टर्म के लिए आपको जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 2 का आधा हाफ कर दें तो क्या हो जाता है +1, तो +1 ले लेंगे होल स्क्वायर कंप्लीट, प्लस 4 थर्ड कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज लिख लेंगे, फिर उसमें से माइनस करना है हमें b के स्क्वायर को यानी 1 का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 4 - 1 3 एंड 3 कैन बी रिटन एज √3 स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, t की पावर -½ लिख सकते हैं उसको, एंड फर्दर t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1 हियर 1/√x² + a² इज log x + √x² + a², ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। एंड लास्टली पुट द वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट टर्म, सो द आंसर विल बी 2a√x² + 2x + 4 प्लस b log √x + 1 √x² + 2x + 4। एंड लास्ट में आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी जो आप फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करेंगे। आपको कंपेयर करना है दोनों साइड और a और b की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो ये आप लास्ट में पुट कर देंगे इसमें a और b के प्लेस पर, तभी आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, डायरेक्ट करना है माइनस कॉमन लेकर के सीधे क्वाड्रेटिक को वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी x का कोफिशिएंट -4 हाफ करेंगे तो -2 होल स्क्वायर -5 एज इट इज़, इसमें से माइनस करना है b के स्क्वायर को यानी 4 को, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट -1/√x - 2 होल स्क्वायर -9। सॉरी, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लगा नहीं था तो ये स्क्वायर रूट लगा लेंगे इसमें। एंड दिस बिकम्स 1/√x - 2 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर, एंड फार्मूला 1/√x² - a² होता है log x + √x² - a² + c। सो आफ्टर पुटिंग द फार्मूला वी गेट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e⁻x ब्रैकेट 1 + x² होल पावर 3/2 प्लस x/√1 + x²। जब भी आपका e⁻x एक फंक्शन हो और ब्रैकेट में दो वैल्यू हो तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम एक रिलेशन यूज़ करें जो कि इस टाइप से होता है, इंटीग्रेशन e⁻x f(x + f'(x) गिव्स ex f(x)। मीन्स आपको दो फंक्शन में से एक फंक्शन को f(x) कंसिडर करना है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है ये प्रूव कर देना है। अब ये फर्स्ट फंक्शन भी f(x) हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, आपको उसमें रफ में उसको करके देखना होगा पहले। तो अगर हम मोस्ट प्रोबेबली सेकंड फंक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है वो f(x) मानने से फर्स्ट आ सकता है, तो आप सेकंड वाले फंक्शन को f(x) कंसिडर करेंगे, f(x) = x/√1 + x², एंड आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो आफ्टर अप्लाइंग डिवाइड फार्मूला √1 + x² कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x कांस्टेंट, √1 + x² का डेरिवेटिव 1/2 √1 + x² इंटू डबल से 2x होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग एंड टेकिंग एलसीएम वी गेट दिस, so we are getting the another function. So if second function is considered as f(x), we get this as f'(x). So this relation can be written as e⁻x x/√1 + x² plus 1/1 + x² whole power 3/2, and by applying above relation its integration will be e⁻x x√1 + x² plus c cos cube x dot e⁻ log sin x dx। अब ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि log sin x को t पुट करना चाहिए और जिससे उसका डेरिवेटिव कॉस में एडजस्ट होगा, बट यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एज यू नो दैट e⁻ log x इज x, तो आपको ये वाला इसमें रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। e⁻ log x x होता है तो e⁻ log sin x क्या हो जाएगा sin x, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है cos क्यूब x इंटू साइन एक्स डी एक्स। e⁻ log sin x को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं sin x, सो cos क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, cos x को आप t लेंगे और माइनस साइन एक्स डी एक्स बिकम्स dt, सो इट बिकम्स माइनस इंटीग्रेशन t³ dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x - 1। दिस इज टोटली पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सो 2x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x - 1 कैन बी रिटन एज a/x + 1 होल स्क्वायर प्लस b/x + 1 प्लस c/x - 1, एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम इन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट 2x + 1 ओनली, बिकॉज हम डिनोमिनेटर को डायरेक्ट कैंसिल करके लिख रहे हैं।
तो आप इस एक स्टेप और कर सकते हैं इसमें, पहले एलसीएम लें उसके बाद ही आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में a के अपॉन में x प्लस वन होल स्क्वायर है, तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वन होल स्क्वायर को हटा दें तो क्या बचता है x माइनस वन, तो a के साथ आएगा x माइनस वन। b के अपॉन में x प्लस वन है, तो यहाँ से अगर एक x प्लस वन हटा दें तो एक बचता है x प्लस वन और साथ में x माइनस वन बचता है। c अपॉन x माइनस वन है, यहाँ से अगर आप x माइनस वन को हटा दें तो क्या बचता है x प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये c का कोफिशिएंट हो जाएगा x प्लस वन होल स्क्वायर। एंड नाउ you have to put the value of x both sides so that you can get the various constant a b c। तो इसके लिए आपको वन बाय वन एक बार इसको जीरो करने के अकॉर्डिंग आपको x को वन रखना है, पुटिंग x इक्वल टू वन। यहाँ देख लें अगर इसको जीरो बनाना है तो x को हमें वन रखना है, तो वन रखने पर लेफ्ट में 3 एंड राइट साइड में 0, ये भी 0 हो जाएगा, एंड 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर दैट इज c इज इक्वल टू 3/4। सेकेंड टाइम हमें x प्लस वन को 0 के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो x होना चाहिए -1, सो पुटिंग x इज इक्वल टू -1। तो इन द लेफ्ट हैंड साइड -2 प्लस 1 -1, राइट साइड a -1 -1 -2 एंड अदर 2 विल बी 0, सो a इज इक्वल टू हाफ। अब थर्ड वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि 1 और -1 के अकॉर्डिंग हम रख चुके हैं, तो थर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, तो एक x इक्वल टू 0 रख देंगे क्योंकि 1 और -1 आ चुका है, तो थर्ड वैल्यू छोटी वैल्यू रखनी है हमें, तो 0 रख सकते हैं। 0 रखने पे लेफ्ट में 1 बचेगा, राइट साइड में -a -b प्लस c। अब दो वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं a एंड c, तो a और c की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें b मिल जाता है दैट इज -3/4। एंड नाउ putting all these value in the previous relation we get 2x plus 1 upon x plus 1 whole square, x minus 1 equal to half x plus 1 whole square minus 3/4 x plus 1 plus 3/4 x minus 1। putting the integration sign first form inverse में ले लेंगे, x plus 1 की power -2 and rest 1 by x plus 1 1 by x minus 1। so using the formula x to the power n, x to the power n plus 1 upon n plus 1 and other two log x plus 1 and log x minus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब माइनस x dx। सबसे पहले आप देखें कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस x, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज इम्प्रॉपर और नॉट। तो आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर देखना है। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है या उससे ग्रेटर है न्यूमरेटर की पावर हाईएस्ट, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाता है, और इस केस में यू नीड टू डिवाइड इट। तो आप एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 को, तो वन टाइम जाएगा क्योंकि दोनों पावर सेम है। 1 से किया हमने तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आ गया है ना, 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स प्लस का हो जाएगा तो पहले लिख देंगे, तो ऊपर -1। सो क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज x माइनस 1, डिवाइजर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इट कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, एंड 1 प्लस x माइनस 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फिर से दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका ये फंक्शन आ जाएगा। और इसमें हमें फिर से पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा इस जगह, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जब 1 होता है और नीचे दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर होते हैं एक के बाद एक आने वाले, तो आप विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन पहला माइनस 1 अपॉन दूसरा। लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर होना चाहिए 1 के डिफरेंस से। अब इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 बाई एक्स का log x एंड 1 बाई एक्स प्लस 1 का log x प्लस 1। सो x टू द पावर 2 माइनस हाफ, रूट x होता है x की पावर हाफ, तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 रूट x dx एंड दिस बिकम्स x टू द पावर 3/2, 2 माइनस हाफ विल बी 3/2, साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 रूट x dx। पुटिंग द वैल्यू x टू द पावर 3/2 as t, we get 3/2 x to the power 3/2 minus 1 dx equal to dt, and x to the power 3/2 minus 1 becomes root x, यानी x to the power half dx is equal to 2/3 dt, so root x dx equal to 2/3 dt। Putting the value in the function we get 2/3 t sin inverse t dt, and इसमें हमें बाई पार्ट्स यूज़ करना है। बाई पार्ट्स में आप आईलेट के हिसाब से अगर देखें तो आई जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो सबसे पहले आता है, इट मीन्स साइन इनवर्स टी विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड टी विल बी सेकेंड क्वेश्चन, सो सेकेंड फंक्शन। तो साइन इनवर्स टी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी होल डी टी। नाउ साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, 2/3 टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी बाई 2 माइनस हाफ ऊपर टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये सिचुएशन जब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाए, यानी ऊपर हमें 1 माइनस टी स्क्वायर लाना है, तो माइनस तो हम यहाँ से ले लेंगे, इसको प्लस करके माइनस को अंदर ले लिया, माइनस टी स्क्वायर हो गया, और 1 को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब अगर हम सेपरेट करें तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, हाफ दोनों में है तो अलग अलग हो जाएगा। और फिर फर्दर
ये एज इट इज़ रहेगा 1/2। यहाँ पे ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, तो ऊपर हाफ पावर हो जाएगी 1 माइनस हाफ पावर, माइनस यहाँ फार्मूला लग गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इज साइन इनवर्स टी। एंड फर्दर इसमें भी फार्मूला लगाएंगे √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज √a² माइनस एक्स स्क्वायर इज x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इट बिकम्स 1/2 ब्रैकेट t/2 √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स t माइनस 1/2 साइन इनवर्स t प्लस c। एंड फर्दर solving it and putting the value of t, we get the final result. Next question is integration e to the power 4x minus 1 upon e to the power 4x plus 1। जब भी ये सिचुएशन आती है कोई कांस्टेंट के साथ अगर एक्सपोनेंशियल होता है तो आपको उस कांस्टेंट को रिमूव करना है और उसके प्लेस पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि e टू द पावर 4x को अगर हम डिवाइड करें e टू द पावर 2x से, तो ये e टू द पावर 2x बन सकता है और यहाँ भी सेम नेगेटिव e की पावर मिल सकती है। तो ऑल टर्म्स विल बी डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x। अब आप और किसी से नहीं कर सकते हैं, अगर आप 4x का आधा करें तो 2x होता है, तो 2x से ही डिवाइड करना है e की पावर 2x से। अगर आप e की पावर x से डिवाइड करते हैं तो फिर वो सीक्वेंस नहीं बनती है, इसलिए आपको e की पावर 2x से सभी को डिवाइड करना है। 2x कैसे मिला, 4x का हाफ, e की पावर 4x बाई e टू द पावर 2x, 4x माइनस 2x 2x बन जाएगा, 1 बाई e की पावर 2x इनवर्स होकर e की पावर माइनस 2x। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर में प्लस बीच में आ जाएगा, बाकी सेम मेथड है। अब ये डिनोमिनेटर को अगर हम t ले लेते हैं तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है न्यूमरेटर में, यानी e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को अगर t लेते हैं, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर 2x का डबल से किया तो 2 आ गया, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x का डबल से किया माइनस 2 आया। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू हाफ dt, 2 कॉमन होकर राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से आपको मिल जाता है 1/2 1/t dt एंड 1/t होता है log t एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ t वी गेट हाफ log e 2x प्लस e माइनस 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन √2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब यहाँ आपको न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को नहीं करना है, क्योंकि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर से अगर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, तभी आप उसको सेपरेट कर पाएंगे। इसलिए आपको न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपको √2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। इससे 2 माइनस एक्स बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये सेपरेट कर लेंगे इसको 1 बाई √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 बाई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज साइन इनवर्स x बाई a। एंड द सेकेंड, since there is x, so we can put t, 4 minus x square can be taken as t, so 4 0 x square का 2x dx is dt, x dx is minus half dt, minus shift हो गया minus half dt, so it becomes 1/2 1/√t dt and 2 sin inverse x by 2 plus 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2√t plus c, 2 cancel and putting the value of t, this will be the final result. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बाई एक्स ब्रैकेट log x होल स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4 dx। बहुत ईजी है, log x को अगर हम t ले लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो log x t 1 बाई एक्स dx dt 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 dt। अब जब भी ये सिचुएशन आती है तो क्वाड्रेटिक को आप वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो t स्क्वायर है तो t ले लेंगे, t का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो उसका आधा करेंगे, माइनस 3 का आधा माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज लिखेंगे, माइनस b का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4। सो 1 बाई टी माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 16 और 9 25/4 एंड टी माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर dt। फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a log x a प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सो t माइनस 3/2 माइनस 5/2 t माइनस 3/2 प्लस 5/2 1/2a, a is 5/2, सो t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, 1/5 log t माइनस 4 बाई t प्लस 1 प्लस c एंड t की वैल्यू रख देंगे, t हमने किसको लिया था log x को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंगल फ्रॉम फर्स्ट, सो x माइनस a माइनस x माइनस b, आफ्टर कैंसलिंग वी गेट b माइनस a। तो पहले दोनों एंगल का डिफरेंस आप फाइंड कर लेंगे इस साइड में, b माइनस a मीन्स आपको साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। b माइनस a कैसे आया, दोनों एंगल का डिफरेंस लिया हमने और साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो इसमें साइन से ही क्यों करेंगे, इसके पीछे लॉजिक है, वो हम बाद में देखेंगे। साइन ऑफ b माइनस a न्यूमरेटर में b माइनस a को अगेन x माइनस a माइनस x माइनस b के फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज b माइनस a हमें किससे मिला था, x माइनस a माइनस x माइनस b से। सो अगेन वी कैन राइट x माइनस a माइनस x माइनस b। अब न्यूमरेटर में साइन ऑफ a माइनस b फॉर्मूला लग सकता है, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे एंड सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने पे एक एक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस टैन
एंड हियर cos x माइनस ए कैंसिल, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी बिकम्स tan x माइनस बी, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log sec x, तो tan x माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए इज log x sec x माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी इज log sec x माइनस बी। अब इसमें हमने साइन से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बिकॉज साइन का जो फॉर्मूला होता है वो अल्टरनेट होता है, साइन कॉस कॉस साइन, तो आपका दोनों टर्म में एक एक फंक्शन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में दोनों कॉस है, ऊपर अगर एक साइन एक कॉस होगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे बार में भी कॉस साइन में एक कैंसिल हो सकता है। अगर आप कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ आता है इसमें, उस केस में कॉस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों रहते, कोई भी कैंसिल नहीं होता, कॉस कॉस से कॉस कॉस कट जाता है, लेकिन साइन साइन अगर दोनों होते हैं तो यहाँ कैंसिल नहीं होता, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो प्रोडक्ट में ही रहता है। इसलिए जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो, कॉस कॉस या साइन साइन हो, तो आपको साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट tan x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली tan x को ही टी पुट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द डबल फंक्शन, एंड जो रूट के अंदर है उसको टी पुट करेंगे तभी ये रूट टी बनेगा, तो tan x को हमें टी पुट करना है। लेकिन जब tan x को टी पुट करते हैं तो हमें उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x चाहिए dx के साथ, बट इट इज़ नॉट देयर, सो फर्स्ट वी शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec स्क्वायर x। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज sec स्क्वायर डी एक्स sec स्क्वायर x dx की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, tan x को टी मानने पर sec स्क्वायर x dx के साथ आना चाहिए, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके उस चीज़ को ला सकते हैं, तो sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब जो sec स्क्वायर x dx है इसको तो हमें रिजर्व रखना है dt के लिए, tan x को हम t मान रहे हैं, बचा डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हमने sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर x, एक कॉस कैंसिल हो गया, अब नीचे साइन बाय कॉस tan x हो गया, अब रूट tan x अपॉन tan x है, ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे 1 पावर है, ऊपर हाफ पावर, नीचे 1 पावर है, तो नीचे हाफ पावर हो जाएगी, ठीक है, रूट a बाई ए 1 बाई रूट ए हो जाता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि tan x को 2 बार लिख दें, रूट tan x इंटू रूट tan x, तो ऑटोमेटिकली एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, tan x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाता है, तो लेट tan x इक्वल टू टी sec स्क्वायर x dx dt 1 बाई रूट टी dt, 1 बाई रूट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी प्लस सी एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बाई रूट एक्स प्लस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर से रूट एक्स को कॉमन ले लेना है, बिकॉज रूट एक्स और एक्स में जो स्मॉलेस्ट पावर है एक्स की वो हाफ है, तो वी कैन टेक रूट एक्स कॉमन। रूट एक्स कॉमन लेने पर आप 1 प्लस रूट एक्स को अगर टी पुट करते हैं तो 1 का 0, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स होता है, विच विल बी 1 बाई रूट एक्स डी एक्स 2 डी टी। तो आपका ये 1 बाई रूट एक्स डी एक्स जो है 1 बाई रूट एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, 2 डी टी में 2 को बाहर ले लेंगे और बचे हुए को हमने टी माना है, 1 बाई टी का लॉग टी होता है, सो 2 log t प्लस सी एंड पुट इन द वैल्यू ऑफ t 2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। अनदर क्वेश्चन e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x dx। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, दिख रहा है कि हमें ex को अगर हम t लेते हैं तो ऊपर ex dx dt में चला जाएगा, सो लेट e टू द पावर x इक्वल टू t ex dx इक्वल टू dt, सो न्यूमरेटर dt बन जाएगा, ex dx dt हो गया, नीचे 5 माइनस 4 ex की जगह t रख दिया, और e टू द पावर 2x का मतलब है e टू द पावर x का होल स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से पहले हम माइनस कॉमन लेंगे, रूट के अंदर ही, रूट के बाहर नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के केस में आप रूट के अंदर ही माइनस रखेंगे, कॉमन लेते हैं तो। और इसको क्वाड्रेटिक से वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे, जो कि मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको टी एज इट इज़ प्लस 2 कैसे आया, 4t, टी का कोफिशिएंट 4 है तो उसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी 2, तो ये b बन जाएगा, t प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस थर्ड टर्म एज इट इज़, और उसमें से b स्क्वायर को माइनस करते हैं हम, तो -4 दैट विल बी -9, और फिर फर्दर हम माइनस को अंदर लेंगे तो 9 पॉजिटिव हो जाएगा, उसको हम 3 स्क्वायर लिख देंगे माइनस टी प्लस 2 स्क्वायर, और ये फार्मूला लग जाता है इसमें 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, विच इज़ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x ई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। इस क्वेश्चन में e टू द पावर x की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो ex जब होता है तो ब्रैकेट में हम कोशिश करते हैं कि fx प्लस f डैश x फॉर्म में फंक्शन हो जाए, क्योंकि उस केस में एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ex ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू ex fx प्लस c। यहाँ हमने इसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद हमने साइन 2x वाली टर्म को पहले लिखा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जो बिगर टर्म होती है कॉम्प्लिकेटेड, उसका डेरिवेटिव सिंपलेस्ट वाला होता है, तो अगर नहीं होता तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो हमने इसको लग रहा था कि इसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो आपने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। अब इस फंक्शन को अगर हम fx कंसीडर कर लें तो हमें डिफरेंशिएट करके देखना होगा कि क्या इसका डेरिवेटिव ये आता है, तो अलग से हम fx अज्यूम कर लेंगे और इसको डिवाइड फार्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे।
डिवाइड फार्मूला आप जानते हैं कैसे करना है, 1 प्लस कॉस 2x कॉन्स्टेंट, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x माइनस साइन 2x कॉन्स्टेंट 1 0 और cos 2x का माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस प्लस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ऊपर आ जाएगा cos 2x प्लस 1, नीचे 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2/1 प्लस cos 2x आ जाएगा, जो कि सेकंड फंक्शन है। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये f(x) है तो ये उसका डेरिवेटिव है f'(x), तो ये फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x होल स्क्वायर dx। डेफिनेटली log x को टी पुट करना ही है, log x को टी पुट करेंगे, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि log x को अगर टी पुट करते हैं तो हमें इसको एक फार्मूला होता है, log x अगर टी होता है तो log एलिमिनेट होता है तो राइट साइड में e टू द पावर t हो जाता है, यानी log हटाते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू के बेस में e आ जाता है, यानी log x इक्वल टू टी देन x इज इक्वल टू e टू द पावर t। अब x का डेरिवेटिव 1 dx इक्वल टू e की पावर t का e की पावर t dt। इट मीन्स log x की जगह हमें t रखना है और dx की जगह et dt रखना है, तो et dt ये लिख दिया हमने dx के प्लेस पे, ब्रैकेट में 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल है f(x) है और ये f'(x) है, ex f(x) प्लस f'(x), तो ex f(x) आंसर हो जाएगा। 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर होता है, तो et 1/t प्लस c एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ t e टू द पावर log x बाई log x प्लस c, बट e टू द पावर log x होता है x, तो x बाई log x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वाई? बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज बिगर देन हाइएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इस केस में हमें डिवाइड करना होता है, पहले हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको डिवाइड करने के लिए हमें x क्वोशेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा माइनस और ये प्लस, कैंसिल हो गया एक्स क्यूब, एक्स और x 2x प्लस 1, सो दिस इज क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो और इसको हम i कंसिडर कर लेंगे, i इक्वल टू एक्स प्लस दिस, या फिर x प्लस, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इसको हम फर्स्ट रिलेशन मान के यहीं छोड़ देंगे और इतने पार्ट को हम अलग से पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 कैन बी रिटन एज a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ये लिख देंगे 2x प्लस 1 और इधर a के साथ आएगा x माइनस 1, b के साथ आएगा x प्लस 1। अब इसमें हम एक बार 1 रखेंगे, क्योंकि हमें एक एक को 0 बनाना है, 2 दिख रहे हैं, एक बार 1 रखने पे ये 0 होगा, एक बार रखने पर ये 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 रखने पर ये पार्ट 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2b, 3 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 3/2, एंड सेकंड टाइम माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 रखने पर लेफ्ट में माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2a, और ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, a की वैल्यू हाफ आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम रखेंगे a और b की जगह, a और b की वैल्यू, और फिर फर्दर ऊपर रख देंगे i के, i इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं और भी पुट करके, तो डायरेक्ट वही रख देंगे 1/2 बाई एक्स प्लस 1, 3/2 एक्स माइनस 1, एंड इंटीग्रेशन कर देंगे, x का x स्क्वायर बाई 2 हाफ 1 बाई एक्स प्लस 1 का log x प्लस 1, 3/2 log x माइनस 1,